So now we are going to create our first Angular 4 application. तो इसके डेमो के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब डेटाबेस की कनेक्टिविटी तो नहीं बट एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट ऐप के नाम से. ओके, विद इन दिस वी हैव अ सोर्स डायरेक्टरी. आपको इस सोर्स डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऐप. विद इन दिस ऐप व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ और उस फोल्डर का लेट से मैंने नाम दे दिया registration. This is the name of my folder, registration. Now within this registration what exactly I am going to do is I am going to create a certain files. एक मैं बनाऊंगा इसमें ऐप मतलब registration.component.css करके, एक हम बनाएंगे registration.component.html करके और एक और बनाएंगे हम registration.component.typescript करके. So in order to create these files, मैंने इस registration folder को select किया, right click किया and here I am going to make a use of this new file option. यहाँ पर जो मैं पहली फाइल बना रहा हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ registration.component.css. तो पहली कौन सी फाइल बनाई है इसमें, registration.component.css. After that I am going to create another file और उस फाइल का नाम मैं देता हूँ registration.component.html. तो यहाँ पर I am going to make a use of registration.component.html. The third file which I am going to make a use is registration.component.typescript. So I am going to make a use of a registration.component.typescript. Okay. तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का नाम आप वही देना जो आपने फोल्डर का नेम दिया. तो मैंने रजिस्ट्रेशन फोल्डर का नाम दिया, तो इसलिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन. Start करें आगे. After creating these three files, the first component on which I am going to work is component.html. मैं एक HTML का layout इसमें बनाने वाला हूँ. So I am going to select this registration.component.html and within this I am going to write an HTML code. तो यहाँ पर I am going to make a use of a division tag. इसकी मैं एक ID ले लेता हूँ registration. So here I am going to write a simple HTML code. तो मैंने यहाँ पर एक division tag ले लिया and within this division tag I am going to make a use of a form tag. Let's say मैं form tag का use कर लेता हूँ. I am going to create a simple registration form. Within this form tag I am going to make a use of a label. And label में I am going to write enter your name. और इस लेबल के सामने what exactly I am going to do is I am going to make a use of an MBSP for a little space, and within this I am going to make a use of input type text. For this demonstration what exactly I am going to do is I am going to make a use of ng model directive. ng मॉडल क्या करता है, बाइंड कर देगा जो भी मैं वेरिएबल दूंगा, ng मॉडल को बाइंड कर देगा उस वाले वेरिएबल के साथ जो भी यूजर इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में डालेगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ng मॉडल. इस ng मॉडल को मैं आपको दिखाता हूँ जैसे एंगुलर 4 में जिस तरीके से लिखा जाता है. आई विल शो यू दैट मेथड. यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ पैरेंथेसिस एंड विद इन दिस पैरेंथेसिस यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट्स. और यहाँ पर हम यूज करेंगे ng मॉडल का. और लेट्स से इस ng मॉडल को मैं एक नेम दे देता हूँ. लेट्स से नेम देता हूँ इज इक्वल टू नेम. और यहाँ पर मैंने अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट को कर दिया है क्लोज.
Okay. Now after that I am going to make a use of a br tag, and यहाँ पर I am going to make a use of another label, and within this I am going to ask enter your gender, and I am going to make a use of and NBSP. एक स्पेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, and here I am going to make a use of input type text. इसमें मैं एक ng model directive यूज कर रहा हूँ, so I am going to make a use of this ng model, and इसका लेट से मैं नेम देता हूँ GEM. So जो भी यूजर इनपुट टाइप टेक्स्ट में डालेगा, दैट वैल्यू विल गेट बाइंड विद माय ng मॉडल डायरेक्टिव. ओके, एंड फाइनली मैं एक और लेबल लेता हूँ, दिस इज माय लास्ट लेबल, एंटर योर पासवर्ड. एंड NBS में लेता हूँ फॉर आवर स्पेस, एक इनपुट टाइप में इस टाइम देता हूँ पासवर्ड. और लेट्स से इसको मैं मॉडल का नाम देता हूँ पास. दैट्स इट. एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ बटन एज वेल. मैं एक बियर टैग भी यहाँ पर, मैंने एक बियर टैग नहीं दिया तो मैं एक बियर टैग देता हूँ यहाँ पर, वरना ये आपस में कंबाइन होंगे. And here I am going to make a use of a button. और let's say button का मैं नाम देता हूँ click to register. हो गया अपना पार्ट डन. सो लेट्स से आई एम सेविंग दिस. तो यहाँ पर मैंने अपने इस रजिस्ट्रेशन component.html में मैंने ये HTML में नॉर्मल सा एक पेज बना लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ component.css. अब हम वर्क करेंगे component.css में. सो सिलेक्ट दिस component.css, और यहाँ पर लेट्स से एक बार मैं component.html में एक h1 टैग ले लेता हूँ. Within this form, I am going to make a, या let's say इस फॉर्म से बाहर भी मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ, h1 1 फर्स्ट एंगुलर 4 ऐप. ओके, तो मैंने यहाँ पर एक h1 टैग ले लिया. सेव कर लेता हूँ मैं इसको Ctrl+S से. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई. अब जो मैं इसमें स्क्रिप्ट लिखूंगा वो CSS की एक मैं इसमें छोटा सा कोड लिखता हूँ. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस component.css. CSS के लिए मैं यहाँ पर एक h1 मैंने टैग बनाया और उससे लेट से मैं कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ. लेट से इसका मैं कलर दे देता हूँ रेड. ओके, और इसका मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देता हूँ सेंटर. तो ये मेरी कुछ CSS की प्रॉपर्टीज होंगी ताकि आपको CSS का भी वर्क दिख जाए इसमें. Ctrl+S से हम वर्क करते हैं इसको सेव. सो लेट्स से अब जो मेन वर्क करेंगे वो करेंगे अपनी टाइप स्क्रिप्ट में. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई registration.component.typescript फाइल. इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ. So now we are going to write a code on our registration.component.typescript. Our first step is to that we are going to create a component first. यहाँ पर मैं क्लास बनाऊंगा. वो क्लास में किस तरीके से बनाऊंगा? I am going to make a use of an export keyword. इस export keyword का मैं यूज करूंगा
विद अ क्लास कीवर्ड आई एम गोइंग टू मेक अ क्लास, और उस क्लास का लेट से मैंने नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन component. So here what exactly I'm going to do is I'm going to create a component. So in order to make this a component, you have to make a use of a directive. Directive जो हम use करेंगे वो करेंगे @component. तो वो directive क्या करेंगे? That directive will going to convert this code into a component. For this, what exactly I'm going to do is before this export command, I'm going to make a use of C मेरा caps में रहेगा, and I'm going to make a use of a component. So, जैसे आप इस कंपोनेंट को इंक्लूड कराओगे आपके पास एक एरर आएगा. इस एरर ही क्यों है? क्योंकि इसके लिए मेरे को एक है ना पैकेज इसका इंपोर्ट कराना पड़ेगा. So at the top I am going to import a package with an import keyword import, और जो ये पैकेज है इसका पैकेज का नेम है आपको इसमें यूज करना पड़ेगा आपका करली ब्रेसेस. विदिन दिस करली ब्रेसेस यू हैव टू स्पेसिफाई कंपोनेंट. आप यहाँ पर एक बार करली ब्रेसेस के अंदर लिख देना कंपोनेंट. कहाँ से ये पैकेज इंपोर्ट होगा? फ्रॉम सिंगल कोट्स में आई हैव अ डायरेक्टरी कॉल्ड एज एंगुलर, और उसके अंदर एक डायरेक्टरी आपके पास मिलेगी एंगुलर /4y. So this component is available within this package, and you have to terminate this with a semicolon. एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस देता हूँ. So let's say after importing its package, अब हमको इस component की definition देनी पड़ेगी. अब इसमें हमको क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा सिलेक्टर्स, टेम्पलेट URL और उसका स्टाइल URL जो भी आपने यूज किया हुआ है. So I'm going to make a use of that. अब इस डायरेक्टिव के अंदर आपको कुछ कंपोनेंट्स बताने पड़ेंगे. जो पहला कंपोनेंट हम यूज करेंगे वो हम करेंगे आपका सिलेक्टर्स का. ओके, तो सिलेक्टर के अंदर आप क्या स्पेसिफाई करोगे? लेट्स से मैं एक बार लिख देता हूँ. मैंने फोल्डर एक बनाया था रजिस्ट्रेशन के नाम से. सो विद इन दिस सिलेक्टर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कि मेरा एक ऐप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है किसके नाम से? रजिस्ट्रेशन के नाम से. सिलेक्टर में आप बताओगे कि आपका ना रूट कंपोनेंट कौन सा है. तो मेरा ऐप के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नाम का एक फोल्डर है. इस सिलेक्टर के बाद जो मैंने इसके अंदर यूज करेंगे स्टेटमेंट वो यूज करेंगे टेम्पलेट URL. टेम्पलेट URL क्या होता है? फॉर योर एंगुलर एप्लीकेशन टेम्पलेट कौन होता है आपका? HTML. HTML इज योर टेम्पलेट फॉर एंगुलर फॉर एप्लीकेशन. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ टेम्पलेट URL. ये टेम्पलेट URL आप किस तरीके से दोगे? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका रूट डायरेक्टरी. ओके, मतलब मेरी ऐप वाली डायरेक्टरी, एंड विद इन दिस ऐप डायरेक्टरी आई हैव अ फोल्डर नेम एज रजिस्ट्रेशन. ओके, एक फोल्डर आपने बना रखा है रजिस्ट्रेशन के नाम से, एंड विद इन दिस रजिस्ट्रेशन यू हैव अ फाइल registration.component.html. So I'm going to make a use of registration.component.html. तो यहाँ पर अब एक बार कॉमा भी लगा देना. सिलेक्टर के बाद भी मैंने कॉमा लगा टेम्पलेट URL के बाद. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्पेसिफाई कि अगर आप कोई स्टाइल यूज कर रहे हो. हम एक स्टाइल URL भी यूज कर रहे हैं, CSS हम स्टाइल यूज कर रहे हैं. फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ स्टाइल URL. और मेरा स्टाइल URL मैंने कहाँ पर दिया हुआ है? Within this registration, I have a file registration.component.css. ये जो स्टाइल URL आपको देना होता है ये आपको देना होता है parenthesis में. So I'm going to make a use of my parenthesis. स्टाइल URL आप किसके अंदर रहते हो? विद इन योर पैरेंथेसिस. तो यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई कर दिया मेरा स्टाइल URL को, एंड दैट्स इट. कोई एरर तो नहीं आ रहा आपको यहाँ पर?
अब इस एक्सपोर्ट क्लास में ना मेरे को वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैंने एनजी मॉडल में वेरिएबल क्या क्या लिया था, एक नेम लिया है, एक जेन लिया और एक पासवर्ड लिया है। उनके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना जाए, तो व्हाट एक्जेक्टली आई एम गोइंग टू डू इज विद इन दिस एक्सपोर्ट क्लास, यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ नेम और इसके अंदर एक नल वैल्यू पास कर रहा हूँ। एक और मैंने वेरिएबल लिया था जेन, इसके भी अंदर मैं नल वैल्यू पास कर रहा हूँ। और एक और मैंने लिया था पास, इसके अंदर भी नल वैल्यूज पास में कर दूँ। दैट्स इट। आपका इतना पार्ट ओके, डन। सो लेट मी जस्ट सेव दिस। अब आप एक बार उस पे आ जाओ component.html पे वापस। आप component.html पे आ जाओ। And after this form, I'm going to make a use of a paragraph tag. Okay. Paragraph में मैं let's एक statement लिखता हूँ name and I'm going to make a use of my expression over here. Expression में पास करता हूँ एक value name. Let's say I'm going to make a use of my br tag. इसके बाद let's say मैंने लिया था gender. तो पैराग्राफ टैग में जो भी यूजर नेम डालेगा, जेंडर डालेगा, वो हमको इस पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ पासवर्ड एज वेल। दैट्स इट। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, यही मेरे वेरिएबल के नेम है, पासवर्ड, जेन और नेम। तो आपको component of TS समझ में आया, CSS समझ में आया, HTML समझ में आया। Now we are going to run this program. In order to run this program, आपको एक बार है ना app-module.ts में जाना पड़ेगा। आप इस वाली फाइल में आओ, app.module.typescript वाली फाइल में। Now within this app module, you have a एक आपके पास है ना वो होगा डायरेक्टिव ng मॉड्यूल करके। एंड विद इन दिस ng मॉड्यूल आपको है ना एक बूटस्ट्रैप दिख रहा होगा ऐप कंपोनेंट। ओके, सो बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है? बूटस्ट्रैप बेसिकली मींस whenever project will get run, so this is the first component which will get loaded. आपका सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल लोड होगा? आपका ऐप कंपोनेंट। So now we are going to include our component in this app.module.ts. जो हमने component बनाया वो कौन सा बनाया? registration component करके। So let's say उसको include कराने के लिए आपको यहाँ पर bootstrap का use करना पड़ेगा। और उससे पहले आपको यहाँ पर ये app component दिख रहा है declaration में। इसके बाद आप एक बार कॉमा देके यहाँ पर एक आप दे दो registration component। जो भी आपने अपनी क्लास का नेम दिया था, registration component। So यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा, नाउ वी हैव टू इंपोर्ट द पैकेज जहाँ से इसको रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं हम टॉप पे। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन इंपोर्ट कीवर्ड। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो अपना रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। ये आपने कर दिया अपने रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। अभी इसको कहाँ से मिलेगा? हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ सिंगल कोट्स। मैंने एक फोल्डर बना रखा है रजिस्ट्रेशन के नाम से, तो मैं उस फोल्डर का नाम यहाँ पर देता हूँ रजिस्ट्रेशन। एंड विद इन दिस रजिस्ट्रेशन आपने एक और फोल्डर बना रखा है रजिस्ट्रेशन। एक फाइल हमने बना रखी है रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम्पोनेंट।
अब यहाँ पर आपको टाइप स्क्रिप्ट देने की नीड नहीं है, आपको बस यहाँ पर उस कंपोनेंट फाइल का नेम देना है, रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम्पोनेंट। तो जैसे आप ये पैकेज आप इंपोर्ट कराओगे आपका ये एरर हट जाएगा यहाँ से, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट से। आपने करा लिया पैकेज इंपोर्ट। सेलेक्ट से मैंने यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट करा दिया और यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ऐप कंपोनेंट के साथ साथ हमारे पास एक और कंपोनेंट है, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट। अब आपको यहाँ पर ये इंपोर्ट से एक सेक्शन दिख रहा है, ब्राउजर, उसके अंदर एक मॉड्यूल होगा, इसके अंदर हमको एक और मॉड्यूल यूज कराना है और उस मॉड्यूल का नाम है आपका फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि हम किसके साथ वर्क करें, फॉर्म हैंडलिंग के साथ वर्क करें। तो यहाँ पर लेट से मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल। अभी इसमें एरर आएगा, इसका हमको एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा, आने दो आपको लिख दिया। इसके बाद आप इसका एक बार पैकेज इंपोर्ट करा दो, लेट से इंपोर्ट, और जिसका पैकेज नेम है वो है आपका फॉर्म्स मॉड्यूल, और ये पैकेज आपको मिलेगा फ्रॉम ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम एंगुलर फॉर्म से। यहाँ पर आपका होगा काम कंट्रोल ऐसा करो, कोई एरर है तो मेरे को बता देना। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, आप इस वाले पेज पे आ जाओ, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल वाले पेज पे, एंड विद इन दिस एचटीएमएल पेज, ये मैं हटा देता हूँ एक बार, इस डिवीजन टैग की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर दिस डिवीजन टैग मैं यहाँ पर इसका एक रूट बता देता हूँ, ऐप रजिस्ट्रेशन, कि ऐप के अंदर एक हमने फोल्डर बनाया हुआ रजिस्ट्रेशन। पहले ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में कौन सा पेज आ रहा था आपका, ऐप रूट। अब यहाँ पर मैंने कौन सा कर दिया, ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन। ओके, सो लेट्स से सेव करने के बाद मैंने ओपनिंग टर्मिनल किया अपनी फर्स्ट ऐप को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी मेरी ng serve। इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। अभी लेट से कुछ बिल्ड ही कर रहा है, टाइम लग रहा है इसमें, विंडोज के मशीन में। अब आगे डेमो हमारा, तो यहाँ पर ये जैसे यूजर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लिखेगा, ये आपके नेम में डिस्प्ले कर रहा है। ओके, ये मेरा फॉर्म टैग के बाद हो गया शायद, इसलिए मेरे को इसको फॉर्म टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। ये भी चेक कर लेते हैं, इसको हटाएगा, फॉर्म टैग की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब यूजर जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा वो यहाँ पर आपकी डिस्प्ले होती जाएगी। नहीं आ रही तो फॉर्म टैग हटा दो, या एक बार देख लो कि इसका स्कोप क्या है। फॉर्म के अंदर ही है, फिर आपके कोड में कुछ एक बार मेरे को दिखा दो।